اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات ہو رہی ہے روایات پر، حدیثوں پر۔ تو یہ میں پہلے آج کا میرا یہ نشست کا یہ موضوع ہے کہ روایات کے مطابق غروب اور طلوع آفتاب کیا ہے، کہاں سے یہ طلوع ہوتا ہے اور کہاں یہ غروب ہوتا ہے روایات کے مطابق۔ تو یہ ظاہر ہے روایات کی بات ہے، تو پھر میرے وہی سوال سے ہی بات شروع کرتا ہوں، تو یہ ساتھ آ جائے گا۔ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ جمع اور تدوین حدیث یہ عہد نبوی میں نہیں ہوا اور نہ خلافت راشدہ میں ہوا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے کم از کم 200 سال بعد یہ کام ہوتا ہے، اور کوئی یہ کام بھی ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر، سینہ بسینہ چلتی ہوئی باتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ جنہوں نے کیا، بہت محنت کی انہوں نے، تو چلیں محنت کی تھی، آگے یہ کتابیں ہمارے سامنے سہا ستہ کی شکل میں، صورت میں، تو شاید اتنی بات نہ خراب ہوتی۔ لیکن جب ہم نے ان چیزوں کو، اس کام کو اٹھا کر قرآن کے برابر کر دیا یا دین کا حصہ بنا دیا اور دین میں اس کو حجت قرار دے دیا، جس طرح قرآن پاک ہے اس کے برابر، بعض جگہ پر تو ہم نے قاضی بنا دیا نا حدیثوں کو، قرآن پر قاضی، تو لیکن کم از کم چلیں برابر حجت بنا دیا، حصہ بنا دیا۔ تو یہ میں اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کام جو ہے نا، یہ بدعت کا کام، بدعت کی ڈیفینیشن آپ سامنے رکھ لیں، اگر جو علماء کرام کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل اس ڈیفینیشن، اس تعریف کی روح سے کہ یہ بدعت کا کام ہے۔ اگر اس کو حصہ نہ بنایا جائے، دین کا حصہ نہ بنایا جائے، حجت نہ بنایا جائے، قرآن کے برابر نہ سمجھا جائے، تو پھر ہے۔ ایک اور بات یہ منکر حدیث، فوری طور پر اگر ایسی کو بات کرے بندہ تو فوری طور پر یہ منکر حدیث بندہ ہے، جی بس بات سنتے ہی نہیں ہے، اگر سنتے ہیں تو بہرحال یہ سمجھے یہ تو منکر حدیث بندہ ہے، اور پھر اس سے آگے یہ منکر رسالت ہے اور منکر قرآن ہے، یہ خیر اس پر بات ہوئی ہے۔ منکر حدیث کوئی نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، میں بھی انکار نہیں کرتا، جیسا میں پہلے عرض کیا ہے کہ یہ بہت بڑے مفکر قرآن ہو گزرے ہیں علامہ غلام احمد پرویز صاحب، وہ بھی انکار نہیں کرتے۔ بات اصل میں یہ ہے جو کی جاتی ہے کہ جو اقوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، یہ جنہیں منکر حدیث کہتے ہیں، یہ ان کو یقینی نہیں مانتے، ہم یقینی نہیں مانتے، میں یقینی نہیں مانتا، یہ ہے بات۔ جو دوسرے جو حجت مانتے ہیں، جو دین کا حصہ مانتے ہیں، جو قرآن کی مثل کہتے ہیں، قرآن کے برابر کہتے ہیں، تو پھر وہ ان کو یقینی مانتے ہیں نا، یعنی کہ وہ فرمایا ہے، بس جو بھی منسوب ہو گیا، فرمان آیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور فعل، اس کو وہ یقینی مانتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو اس کو ہم یقینی نہیں مانتے۔ یہ عبید اللہ سندھی صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس جو سہا ستہ ہیں، یہ 6 کتابیں ہیں، ان کو اناجیل اربع، انجیل کی کچھ 4 کتابیں ان کے برابر اگر رکھ دیں
समझने तो कोई मसला नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। मगर हम तो इसको दीन का हिस्सा कहते हैं, असास कहते हैं, बुनियाद कहते हैं, हुज्जत मानते हैं दीन में। तो ये बात है मेरे भाइयों कि ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये फ़र्क है। बस मुनकर हदीस आप कहते रहें कि हदीसों का ऐसा इस तरह कोई इनकार नहीं करता कि नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं, बस ख़त्म कर दे, ऐसी बात नहीं। उसको परखना है, देखना है। परखने की चीज़ जो हमारे पास मौजूद है वो सिर्फ कुरान पाक है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है और वो क़यामत तक है। उसने जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था वैसा ही अब है। ये तो जनरल बात होगी ना रवायात के मुताबिक। अब मैं ये गरूब और तुलू आफ्ताब के हवाले से रवायत आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब आप देखना कि ये रवायत कि क्या ये ऐसा फरमान नबी का हो सकता है, नबी ऐसा फरमान कह सकता है, ये बात आपने करनी है। ज़ाहिर है इसका जवाब हाँ या ना में हो जाएगा। अब मेरा भी कोई इस पर मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है वो मैं बयान करूँगा, है सवाल की सूरत में वजाहत करूँगा उसकी कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आते हैं। जैसी रवायत है सामने आई उसको सामने रखते हुए तो वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने। पहला सवाल भी हो गया, उससे ये आगे एक कदम थोड़ा सा कि आगे बजाते खुद जो रवायत है वो आपको क्या लगती है, उसको जरा देखें, परखें, तो वो उसमें क्या नजर आता है आपको। ये हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से जब के आफताब गरूब हो रहा था ये फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ये गरूब होकर कहाँ जाता है, सूरज गरूब होकर कहाँ जाता है। हज़रत अबू ज़र मैंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल खूब वाकिफ है, वो जानते हैं। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी, जब भी आपने कोई सवाल किया साहबा कराम से तो उन्होंने आगे से यही जवाब दिया, यही अर्ज की, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं या आप बेहतर जानते हैं। फिर आ गया आप उसकी वजाहत फरमा दिया करते थे। तो ऐसा ही ये मामला है, अल्लाह और उसका रसूल खूब वाकिफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गुरूब होकर यानी कि सूरज गुरूब होकर अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है, अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है और फिर अल्लाह से अगले दिन के लिए तुलू की इजाजत मांगता है तो उसे तुलू की इजाजत दी जाती है। लंबी थोड़ी सी आगे बात है, बस मकसूद ये बयान करना था कि सूरज गुरूब होकर कहाँ जाता है, ये सिर्फ ये बताना मकसूद है। और जब तुलू होता है तो उसकी बात भी आगे आ जाएगी। यही मतलब है अल्लाह ताला की इस कौल को। आगे बात है शम्सु ताजिल मुस्तक़िरिल्लाह, ये अपने मुस्तकर की तरफ सूरज जा रहा है। सही बुखारी है, जिल्द दोम है, मतबूआ मकतबा रहमानिया लाहौर है, हदीस नंबर 430 है। सही बुखारी, बुखारी के साथ हम लिख देते हैं सही बुखारी। वैसे भी कहते हैं सही हैं, जो दो ये किताबें हैं बुखारी और मुस्लिम, ये सही हैं। इसकी जो भी बात है इसमें वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। वो नबी का फरमान है जो आपकी तरफ मंसूब है, वो फरमान है। ये यहाँ ये कहते बाकियों के बारे में भी ऐसा ही है, सबके बारे में ऐसा है, जो भी फरमान है आपकी तरफ उसको वो यकीनी मानते हैं कि ये आपका ही फरमान है। अच्छा, इस के बारे में थोड़ी सी मैं अर्ज कर दूँ। इस हदीस पर मेरी चंद दोस्तों से बात हुई तो मुझे इस हदीस की काफ़ी लंबी चौड़ी तफसीर दिखाई गई। अगर आप देखेंगे तफसीर में तो आपको बिल्कुल इसकी बताई जाएगी, दिखाई जाएगी। जिसका लुब्बिल बाब ये था या है कि इस सजदे का मतलब ये है कि हर चीज़ अल्लाह के हुजूर झुकी हुई है। वो जैसे कहा ना सूरज
اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. تو سجدے سے مراد ایسے نہیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جھکی ہوئی ہے. ہر چیز اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. توہن کرہن ہر چیز جھکی ہے. بالکل درست بات. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز جھکی ہوئی ہے. مگر یہ بات اتنی بات تو درست نظر آتی ہے، مگر آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہ کہا جاتا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے. تو کہاں ہے اللہ کا عرش؟ یہ بھی روایات ہی بتاتے ہیں، یہ بھی علماء کرام ہی بتاتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، اور ان آسمانوں کی موٹائی بھی بتاتے ہیں کتنی کتنی ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ بھی بتاتے ہیں روایات کے مطابق. اور 7 آسمان سے اوپر عرش ہے، اس کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے. تو اس کے بارے میں اور بھی ہے، وہ بکروں نے ٹھایا ہوا ہے، ان کے سینگوں پر ہے، اور اس پر اللہ جلوہ فروز ہے اپنی شان کے مطابق. تو میرے بھائیوں، یہ آپ دیکھیں کہ پھر سورج عرش کے نیچے اس کا سجدہ کرنا، اس کی یا جھکنا، یعنی کم از کم اتنی بات تو اس سے واضح ہوتی ہے نا، اس روایت سے، کہ وہ عرش کے نیچے جاتا ہے. سورج اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے. اتنی بات تو واضح ہو گئی. اب دیکھیں، سورج تو پہلے آسمان سے نیچے ہے. آسمان تو بہرحال نظر ہی نہیں آتا، دیکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن سائنس کو ابھی تک کائنات کا کوئی بھی کسی کنارے پر نہیں، کسی کنارے کا نہیں علم ہوا، نہیں معلوم ہوا کہ یہ کائنات کا کنارہ ہے. اتنی بڑی کائنات ہے. اور آسمان تو کہیں اوپر ہے، جو نظر آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ حد نظر ہے، بس وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے. یہ پہلے آسمان کی میں، تو یہ تو سورج پہلے آسمان کے نیچے نیچے ہے. اچھا، جب یہ غروب ہوتا ہے تو پھر دیکھیں کتنا فاصلہ یہ طے کرتا ہے. غروب ہونے کے بعد یہ کتنا فاصلہ طے کرتے ہوئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا. ایک اور میں عرض کر دوں، یہ بھی روایات سے جو میں بتایا کہ آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ 72 نوری سال. یہ نوری سال کیا ہوتا ہے؟ روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. 1 سیکنڈ میں وہ اتنی رفتار سے چلتی ہے. پھر آپ حساب لگا لیں، کیلکولیٹ کر لیں، 1 منٹ میں کتنی چلے گی، گھنٹے میں کتنی چلے گی، گھنٹے کے بعد وہ دن میں کتنی چلے گی، مہینے میں کتنی چلے گی، اور 1 سال میں کتنی چلے گی. اتنا فاصلہ ہے ایک آسمان کی موٹائی کا اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا. تو یہ تقریباً یہی بات آ رہی ہے کہ تقریباً 72 سال لگتے ہیں. تو سورج اتنا فاصلہ طے کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ یہ تو روایت یہی بتائیں. غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ عرش کے نیچے جاتا ہے. سجدہ کرتا ہے، سجدے کی بات وہ کہہ دی، تفسیر آ گئی لمبی چوڑی کہ اس کا مطلب جھکنا ہے، جھکتا ہے اللہ کے آگے. تو جاتا تو عرش کے، وہاں سے حکم ملتا ہے اس کو اگلے دن کے لیے تو طلوع ہو جا. تو وہاں سے ہی پھر وہ آگے چل کے طلوع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے میرے بھائیوں بات. اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، اب جو ہمارے سامنے ہے، آپ بھی مشاہدہ اس کو بالکل مشاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو میں نے ہی صرف پڑھی ہے اور مجھے ہی اس کا پتہ ہے کہ آپ کے سامنے نہیں ہے. نہیں، آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں.
हकीकत ये है कि सूरज कहीं नहीं जाता, ये हर वक्त आधी जमीन पर चमकता रहता है, यानी हर वक्त इंसानी आंख के सामने रहता है। जब ये पाकिस्तान में गुरूब हो रहा होता है तो उस वक्त ये कनाडा, अमेरिका वगैरह में तुलू हो रहा होता है। अगर आपका कोई जानने वाला कनाडा में है, अमेरिका में है, खबर का कोई ना कोई तो मिल जाता है, तो आप फोन करके इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। वैसे भी आप अगर ये देखते हैं हम वीलॉग वगैरह या दोस्तों के जो उधर से करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी इस वक्त हमारे ये है, अभी दिन फलान तारीख अभी यही है, जो भी होती है 14 तारीख है तो आज 14 ही आपके यहाँ बदल गई है, आप एक इतना आगे, हम तकरीबन कनाडा और अमेरिका से 10-11 घंटे आगे हैं हमारा अब दिन खत्म हो रहा है ना, तो उनका यानी कि मसलन अगर समझें कि आज 14 फरवरी है तो अमेरिका में 14 फरवरी नहीं है, अमेरिका में अभी 13 फरवरी चल रही है। ये सारी रात वो 13 फरवरी, वो सुबह जब होगी, हमारी सुबह होगी ना, तो फिर वो उनका दिन चढ़ना शुरू होगा 14 का, 14 फरवरी का। ये मेरे भाइयों ये है हकीकत। अब आप सऊदी अरब से हमारा जो फर्क हम कहते हैं, अक्सर लोग जानते हैं इस चीज को कि 2 घंटे का फर्क है। हमारे जब रोजा अफ्तार हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, सऊदी अरब में तो उस वक्त गुरूब नहीं होता, वहां तो सूरज खड़ा होता है, वो असर का वक्त होता है तकरीबन उस वक्त। आपने देखा होगा, आप टीवी पर देखें जो मनाजर दिखाते हैं खाने काबे के और मस्जिद नबवी के, तो वो उस वक्त असर की तकरीबन नमाज हो रही होती है। तो फिर क्या मतलब होगा, सूरज तो कहीं नहीं जाता, सूरज तो जब गरूब, ये हमारी तरफ से ऐसा लगता है कि सूरज गरूब हो गया है, मगर वो गरूब नहीं होता। आप इस बात की तस्दीक मतलब कर लें फोन करके, सऊदी अरब कर लें, सऊदी अरब में बहुत सारे जानने वाले, अमेरिका के, बरतानिया के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, 7 आसमानों के ऊपर अर्श और हर आसमान का दरमियानी फासला और 7वें आसमान के ऊपर अर्श तक का फासला भी रवायात में मौजूद है। तो कहाँ पहले आसमान के नीचे सूरज और कहाँ 7 आसमानों के ऊपर अर्श। ये है मेरे भाइयों कहानी। अब आप खुद ही सोच लें कि ये रवायत आप इसको यकीनी कौल मानते हैं, जो दूसरों को मुनकर हदीस कहते हैं, वो इसका मतलब ये है कि वो इस फरमान को यकीनी कौल मानते हैं कि हाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। तो फिर मेरे भाइयों क्या बात बनती, नबी ऐसी बात क्यों फरमाए। मुझे इसका मैंने थोड़ा सा एक यानी कि नबी हकायक कायनात के खिलाफ क्यों बात करे। सूरह बनी इसराइल की आयत 36 में है कि जिस बात की तुझे खबर ही ना हो उसके पीछे मत पड़ो, जनरल बात की है। तो ज़ाहिर है फिर ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लागू होती है। नबूवत मिलने से पहले ही अंबिया कराम को यानी झूठ, खयानत, शराब नोशी वगैरह की वो खराबियां, इन ऐसी बातों से महफूज रखा जाता है, नबी की हिफाजत की जाती है। नबूवत मिलने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नबी कोई ऐसी बात करे। नबूवत ऐलान नबूवत से पहले हिफाजत की जाती है कि लोग कुछ ताना ना दें। ये खास बंदे होते हैं, अल्लाह के चुने हुए होते हैं, पैदाइश के साथ ही इनकी हिफाजत और इनकी तरबियत और इनको तैयार करना शुरू हो जाता, और किसी बंदे को नहीं। ये भी यहाँ भी हमारा अकीदा गलत है कि अल्लाह ने फलां बंदे से काम लेना है, अल्लाह उसकी तैयारी कर रहा है, अल्लाह उसकी तरबियत कर रहा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है, इंतहाई गलत अकीदा है हमारा। अल्लाह किसी बंदे से काम नहीं लेता, किसी बंदे से काम नहीं लेता, सिवाय अंबिया कराम के। हैं वो भी बंदे,
बशर मुंतखब अल्लाह के किए हुए, उनसे काम लेता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो मेरे भाइयों, यहाँ ये मैं और भी अर्ज करना चाहता हूँ कि हम जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है वो ये भी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है। ये बरेलवी भी ये कहते हैं और अहले तशय्युई भी ये कहते हैं। ये दोनों इस बात पर मेरा ख्याल मुत्तफ़िक़ है कि ये दोनों ही ये बात मानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म भी है। ये देवबंदी और अहले हदीस या गैर मुक़ल्लिद वो नहीं मानते। अब मैं ये दलाइल तो नहीं दे रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है या नहीं है, मैं तो एक बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, जमा और तदवीन हदीस को मैं बिदअत कहता हूँ, क्यों कहता हूँ वो भी बता दिया। अब देखें, ये मैं उसकी आगे जो रवायत है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अपनी बात भी कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ कि ये ऐसी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब फिर क्या हदीस ये बुखारी की है। अगर हम इनकार करते हैं तो हम काफिर करार पाते हैं कि दीन में हदीस हुज्जत है। एक हदीस का इनकार भी जो है वो बंदा काफिर हो जाता है। आप मुझे बताएं अब कि क्या आप इस हदीस को मानते हैं कि यकीनी नबी का ये कौल है? अगर नबी का ये कौल है तो फिर ये तो ऐसे नहीं बात बन रही, नहीं साबित हो रही, सही दुरुस्त नहीं साबित हो रही। सूरज तो हर वक्त चमकता है, हर वक्त इंसानी एक तरह से इंसानी आंख के सामने रहता है। इंसान है ना, हम मगरब हो गई हमारी आंख से ओझल हो गया, पाकिस्तानियों की आंख से ओझल हो गया। आगे दुबई से होता हुआ सऊदी अरब, वो भी इंसान है, उनको नजर आ रहा है चमकता हुआ। आगे चलते जाए तो उनको भी नजर आ रहा है, चलते चलाएं। फिर आगे कनाडा अमेरिका आता है तो आप देखें वहां हमारा इधर रात है और उधर वो निकल रहा है, उनको नजर आ रहा है, इंसानों को नजर आ रहा है, हर वक्त इंसानी आंख के सामने रहता है। तो ये बात मैं अर्ज करना चाहता था आपसे। आगे थोड़ा सा मैं एक और बात इसके साथ ही गुरूब की बात भी मैं आपको बता दूं। तुलुए आफ्ताब पर एक हदीस, अब गुरूब की बात हो गई, पहले गुरूब की बात ही बताइए ना। गुरूब होकर अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है और सजदा करता है, वहां से हुक्म मिलता है सजदा, आप बात समझ गए सारी, वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है। तुलुए आफ्ताब पर एक हदीस है, हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी नमाज में ना तुलुए आफ्ताब का वक्त आने दो और ना गुरूब आफ्ताब का, यानी कि जब सूरज तुलू हो रहा हो उस वक्त भी नहीं पढ़नी। हम करते हैं ना कि जब सूरज निकल रहा हो, अंदर बाहर जिसे कहते हैं, उस वक्त सही नमाज नहीं पढ़नी, सजदा नहीं करना। और इसी तरह गुरूब आफ्ताब, जब सूरज अभी गुरूब हो रहा हो, गुरूब होने में कुछ वक्त लगता है ना, जब वो गुरूब होना शुरू होता है थोड़ा सा नीचे जाता है, ऐसा लगता है ओझल हो रहा है, होते होते फिर मुकम्मल आंखों से ओझल हो जाता है। तो उस वक्त फरमाया ना सजदा किया करो, है नमाज ना पढ़ा करो। क्यों? इसलिए कि आफताब से शैतान के दोनों सींगों के दरमियान से तुलू होता है। क्यों नहीं करना? जब सूरज निकलता है, तुलू होता है, इसलिए कि आफताब शैतान के दोनों सींगों के दरमियान से तुलू। शैतान के कोई दो सींग है, हमने तो नहीं देखे, ज़ाहिर है ये नबी की तरफ से मनसूब बात है, उन्होंने देखे होंगे, उनको पता है, उनका इल्म है। क्या किया जाए, बात तो करना पड़ती है ना, नाजुक है मसले बहुत ज्यादा। तुलू होता है, शैतान के दोनों सींगों के दरमियान से तुलू होता है। ये है सही बुखारी जिल्द 2 में मतबूआ मकतबा रहमानिया लाहौर, हदीस नंबर 502। वो पहले वाली 430 थी और ये है 502 नंबर। अब देखें आप मेरे भाई, शैतान के सींगों से, अब जब वो अर्श के नीचे जाता है तो तुलू भी अर्श के नीचे से ही उसको होना चाहिए। ये इस बात की मतलब जितना भी बड़ा अर्श है
ये अर्श वाला मामला भी बड़ा अलग है, मैं हुआ तो कभी बात कर दूंगा, जिस पर अल्लाह है बैठा हुआ। तो ये जब वो उसके नीचे गया तो मतलब दरमियान में गया ना, फिर जाकर उसने अर्ज की, मतलू होने की इजाजत मांगी, तो फिर उसको इजाजत मिल गई, गरूब हो गया तो इजाजत मिल गई तुलू होने की, हाँ जी अभी तुलू हो जा, तो वो आगे तुलू हो जाएगा। ये शैतान के सींग कहाँ से आ गए? ये भी देखे रवायत है, सही बुखारी की है, और बुखारी की हर हदीस सही है, सही है इसको कहते हैं। और एक हदीस की अनकार आप करते हैं तो आप काफिर ठहराए जाते हैं। आपको मुंह नहीं लगाता कि ये तो हदीसों का मुनकर है, मुनकर हदीस के फतवा लगा के बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। दूसरे बंदे भी फिर ऐसे ही कोई नहीं बात सुनता, कहते हैं कि यार ये क्या बात है, ये तो हदीसों को ही नहीं मानते। ये आपके सामने दो मैं रवायात हदीसें आपके सामने रखी हैं। शैतान के सींगों का तो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं। सूरज अकेला कहीं नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो पूरा निज़ाम शम्सी जा रहा है, जिसका आयत में इशारा है। आयत है ना, वह शम्स तजरी मुस्तकिर, अब मुस्तकर की तरफ, मुस्तकर देख लें आप क्या है, मुस्तकर ठिकाना है, हर चीज जा रही है, हम हर बंदा हर चीज अपने अंजाम की तरफ जा रही है, और फना है, हर चीज को फना की तरफ जा रही है। तो बस मेरे भाइयों, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था, तलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब और रवायात की रोशनी में। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, खुद देख लें, खुद सोच लें। ये आगे मैंने लिखा है, देखें, जो स्कूल का बच्चा, कॉलेज का लड़का या कोई जरा पढ़ा लिखा आदमी ये जानता है कि सूरज के सामने जमीन के अपने महवर के गिर्द घूमने से दिन रात वजूद में आते हैं। जमीन की दो तरह की गर्दश साइंस ये बताती है। एक ये अपने महवर के गिर्द, आप लट्टू को देखें ना, वो घुमाते हैं जो, तो वो जिन नीचे कील होता है जिसके गिर्द वो घूमता है, इस तरह भी जमीन घूम रही है। और वो घूमती हुई पूरी की पूरी जमीन सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है। वो जो लट्टू के गिर्द घूमती है वो 24 घंटे में पूरी होती है, 24 घंटे में घूम जाती है। जो हिस्सा उसका सामने सूरज के होता है वो दिन होता है, और वो इस तरह जब देखें, अगर घुमाएं कुछ चीज गोल को रोशनी के सामने, बल्ब के सामने रख कर, तो आपको ज़ाहिर है वो जो रोशनी के सामने होगा हिस्सा वो आपको रोशन दिखाई देगा, दूसरा हिस्सा डार्क होगा, ज़ाहिर है उसके ऊपर रोशनी नहीं है। इसी तरह ये दिन रात पैदा होते हैं। दिन रात की पैदाइश इस तरह होती है, जमीन के घूमने से, जमीन के अपने महवर के गिर्द घूमने से दिन रात पैदा होते हैं। और वो जो घूमती हुई, उसी तरह घूमती हुई जमीन सूरज के गिर्द, उसके अपने मदार में सूरज के गिर्द भी घूमती है। जो वो 365 दिनों में चक्कर उसका पूरा होता है। वहां 365, एक साल जब हम कहते हैं ना, तो वो एक साल में उसका चक्कर पूरा होता है। दिन रात वजूद में आते हैं, तो वो ऐसी मज़ाक़ा खेज अहादीस को कैसे मान सकता है? अब पढ़ा लिखा बच्चा जो साइंस पढ़ता है, मैट्रिक में पढ़ता है, या FSC या FA में वो चीज़ें ये सारी पढ़ता है, और उधर दूसरी तरफ उसको ये हदीसें बताई जाएं, तो वो क्या समझेगा, किसको समझेगा? जो साइंस कितनी लॉजिक से बात करती है, और ये बातें इस तरह आ रही हैं हमारे पास, यकीनन ऐसी बातें उसे दीन से दूर करेंगी। गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे क्या सोचेगा? साइंस के मुताबिक दिन रात वजूद में आने की बात के सच होने का सबूत, आप देखें, मैंने ये बात की है ना कि अपने महवर के गिर्द, आप कहेंगे ये इसको कैसे पता, आप लोगों को क्या पता? अब वो जो साइंस है, जो साइंसदान है, वो इसी बात को सामने रखकर सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की पेशीनगोई करते हैं। आप अक्सर पढ़ते हैं, और पहले ही साल के शुरू होने से होते ही वो बता देते हैं आपको, फलान तारीख को ये सूरज ग्रहण होगा, फलां फलां इलाके में नजर आएगा, फलां फलां इलाके में नजर नहीं आएगा।
तो क्या मतलब हुआ? और वो इतनी देर तक रहेगा। 100% दुरुस्त होती है उनकी ये पेशीन गोई की, ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की, इसी ये जमीन की गर्दश जो है अपने महवर के गिर्द और सूरज के गिर्द जो उसकी गर्दश है, उसकी बना पर वो पेशीन गोई करते हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की, जो 100% हमारे सामने आती है और दुरुस्त साबित होती है। तो बस मेरे भाइयों, ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता था। बात बुनियादी तौर पर मेरी वही है जो मैं अर्ज करता हूँ। एक तो ये काम जो जमा और तदवीन हदीस का काम जो हुआ, ये जिस उसको दीन का हिस्सा बनाने से वो बिदत बन गया। दूसरी आपके सामने ये बाकी चीजें जो सारी आ रही हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा लें, आप खुद सोच लें, आप भी तज्जिया कर सकते हैं आप ऐसी चीजों का। तो बस मेरे भाइयों, मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता था कि ये है कहानी सूरज तो गुरूब होने की और सूरज तुलू होने की। आपको बात अच्छी लगे, हकायक पर मबनी लगे, तो प्लीज़ आप फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप मेरी ताकत बने, मदद करें, इसमें मददगार बन जाएं। उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उसको फिर कमेंट्स किया करें। आप कुछ कुछ तो बोला करें। अगर मेरी बात गलत लगती है तो आप कहा करें आप गलत बात करते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त है तो फिर आप उसको लाइक किया करें, तो उसका फायदा होगा मुझे और आपको भी होगा फायदा कि नेकी की बात उसको फैलाने में आप मददगार बन गए हैं। तो बस मेरे भाइयों, मैं ये बात करना चाहता कि ये मैं समझता हूँ कि ये जिन लोगों ने ये चीजें बनाई हैं ना, इंतहाई दर्जे के वो लेमैन थे। बस उन्होंने ऐसे बना दी, साफ बता दिया नबी की तरफ से कि ये बातें हैं। साइंस ने अब साबित किया। अब हम उस वक्त होते तो शायद हम भी उनके पीछे ऐसे ही चलते। अब चल रहे हैं तो उस वक्त क्यों ना चलते। इतनी साइंस ने तरक्की कर ली, इतनी बातें सामने आ गई, आप फिर भी नहीं मान रहे। तो अगर उस वक्त होते जब उन्होंने बातें की हैं 200-250 साल बाद, तो हमने तो बिल्कुल मान, यानी कि उन्होंने अंदाजा लगाया कि अब दुनिया पर दिन है तो बस सारी दुनिया पर दिन है, अगर रात है तो ये सारी दुनिया पर रात है, क्योंकि मवासलात का इतना निज़ाम ही नहीं था। अब तो है ना इतना फास्ट, मोबाइल पकड़े हुए हैं, फोन है, हर चीज है, आपको हर दुनिया की खबर आपकी हथेली पर है दुनिया सारी, तो आपको हर चीज का पता चल जाता है। तो उनको इतनी खबर भी नहीं थी, उन्होंने बात बना दी। अगर खबर नहीं थी तो बात बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों बनाई बात? लेकिन बात बना दी उन्होंने। और बात अगर अपनी तरफ से बनाते तो कौन बात मानता उनको, किसने सुननी थी बात? उसको मनसूब कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। बस अब ये तकदीस मुकद्दस बात सामने आ गई, कौन बोले, कौन बात करे, कौन फतवे सुने। तो ये बात है। मैं तो यही समझता हूँ कि इंतहाई मतलब लेमैन किस्म के शायद उनकी सोच बनती, मुझे तो ऐसी नजर आती है कि जिन्होंने ये ऐसे काम किए। था ऐसा उस वक्त मुहद्दिस की बहुत इज्जत एहतराम था कि जो नबी की बातें बयान करता है, नबी के फरमान जो है वो बयान करता है, तो वो इस तरह बहुत सारे मुहद्दिस बन गए। ये भी रिवायाती बताती हैं, मुहद्दिसों में बहुत इजाफा हो गया। तो खैर ये मैं आपके सामने अर्ज करना थी। तो मैं ये आपको आगे भी कुछ इस तरह की बातें बताऊंगा कि मौसम कैसे बदलते हैं। यहाँ तो मैंने अर्ज कर दिया ना, ये जो सूरज के गिर्द घूमती है जमीन, एक साल में ये मुकम्मल करती है, मौसम ऐसे बदलते हैं। लेकिन आप देखेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि रवायात के मुताबिक ये मौसम कैसे बदले, और भी इस तरह की बातें थोड़ी सी हैं तो जो मैं आपके सामने सोचो विचार के लिए परखने के लिए आपके सामने, या मैं जो बात अपनी करता हूँ उसको मजबूत करने के लिए दलील के तौर पर मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। तो आप मतलब कह दें कि आपकी दलील गलत है, आप गलत बात करते हैं, असल ये है, तो ठीक है, मैं बिल्कुल मान जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ तो बताया करें ताकि मैं भी दुरुस्त हो जाऊं, मैं भी काबिल सलाह हूँ, तालिब इल्म हूँ, मैं तो यही बात कहता हूँ। तो मेहरबानी, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।